Hello and welcome. Research method in psychology. Two important frameworks are there. One is called scientific framework, where we emphasize objectivity, logical scrutiny of the evidences. Okay, and other is qualitative research framework, where we emphasize meaning, not just evidences. So, as you know, then in psychology we study behavior, mental processes, and experiences of individual. So we have interest in experience also, and experience is very subjective thing. So if we borrow from science the methods to conduct research in psychology, we have some limitations. What are the limitations? We can study the way we study in physics, chemistry, by using the method of observation and experimentation. But there is a limitation. What is limitation? That you will be impersonal. Science is impersonal, evidence is based, replicable. You will focus on objectivity. But let me tell you one thing. I am going to discuss alternative framework of research, that is called qualitative research methods or qualitative research paradigm. So my uh, approach is here to understand what is qualitative research paradigm. In order to understand this thing, I will tell you some incident. Try to understand that if you want to conduct research on this thing, how will you do this thing? Think of COVID case. Okay, how many people died, how many people became hospitalized, what was the situations. You can study this thing by using scientific method, you have survey or many other things, and you will come to know about the data. Okay, but what was the experience of the individuals who were suffering during pandemic? Can you understand from data? Data will tell you nothing. You require meaningful things. You require what were the experience of the people. I can tell you that I have seen in one hospital. I was also affected from COVID in second wave. Then uh, on the way, when I was there, then one person, girls came and she said, "Oh, यहाँ पे जो पहले थे वो कहाँ गए?" मैं कुछ बोल नहीं सका, बहुत ही हॉरिबल माहौल था. अच्छा अच्छा, हाँ 2 घंटे पहले वो मर गए, उसके पहले मॉर्निंग में भी 2 मर गए थे, अब आप आए हो. कैन यू बिलीव दिस थिंग? व्हाट वाज द सिचुएशन ओवर देयर? And if you ask me your COVID experience, my COVID experience, I can tell you that that was very horrible thing for me. So अगर आपको ये लगे कि I want to know what was the condition in hospitals, how doctors were behaving, how nurses were behaving, what was the situation of the inpatients, कैसा situations था. हमने देखा कि वो मेडिसिन दूर से रख के चले जाते थे, वो इंजेक्शन एक को लगा रहे थे इस तरीके से जैसे पूरे ब्लडेड हो गया पूरा हाथ. सो कैन यू इमेजिन द फियर? So this incident, when I am telling you, when I am describing, give you much more enriched experience than normal data and all. So qualitative research framework, when I say qualitative research paradigm, then what will be the things? This side, suppose you take scientific research framework, and this side is qualitative research framework. What differences you will find? Then you will, if you take a comparative approach, you will understand. Getting? Here, we are focused on meaning.
of events, subjective experience. बट सब्जेक्टिविटी तो इधर बहुत बेकार चीज है, यहाँ पे मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, ओनली इवेंट्स, इंसिडेंट जो हुआ उस पे मतलब है, और उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव स्टडीज करने की बात हो रही है ना. सी द डिफरेंस, आई एम टेलिंग यू, हियर योर पर्पस इज नॉट टू स्टडी समथिंग इन ऑब्जेक्टिव मैनर. Wing Sang Fayan visited India, wrote about the Gupta period and Mauryan Empire over there in history. आप उस पर रिलाई करते हो, हाँ? You understand that thing. So what is the focus? You try to understand the narrative, what were the situation in the society and political situation over there from the perspective of Wing Sang and फायन. आप अगर उसको डिस्काउंट करोगे तो आपको पहले तो सोर्स नहीं है और ज़्यादा, और दूसरा आप उसके जो एक्चुअली विजिट किया है, जो एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, उसका एक्सपीरियंस तो अलग होगा ना. जैसे कोई रेप विक्टिम है, उसका एक्सपीरियंस और केवल रेप के बारे में पढ़ना दो अलग अलग चीज़ है. सो इन बिहेवियरल साइंस बी फोकस ऑन दिस पार्ट ऑल्सो. ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है. ऑल्दो हमारे पास भी क्वांटिटेटिव रिसर्च फ्रेमवर्क है, लेकिन ये प्लस में है, मतलब इसको भी हम लेते हैं. आप समझ रहे हैं डिफरेंस? यहाँ पे हम मीनिंग को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज करते हैं. तभी तो देखो, सब्जेक्टिविटी यहाँ पे एक टैबू हो सकता है कि सब्जेक्टिव मतलब विश्वास करने लायक, रिलायबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिविटी तो वो रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस है. जैसे कोई ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन कर रहा हो तो सब कोई दूर से देखोगे तो बैठा है मेडिटेशन कर रहा है, बट व्हेन ही और सी इज डूइंग ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, तो शून्य जो एक्सपीरियंस है, व्हेन यू फील, व्हेन यू एक्सपीरियंस नथिंग, जीरो, सो हाउ इट फील्स, ओनली दैट पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस दैट थिंग कैन टेल यू. गेटिंग? तो ये जो जोर है हमारा यहाँ पे, एक्सपीरियंसेस जो बात सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ये ऑब्जर्वेशन ही, लेकिन वो सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन सेंट्रिक. पर्सन ने बताया है आपको सेल्फ रिपोर्ट से या जैसे भी. यहाँ पे आप दूर से देखते हो, यू ऑब्जर्वेशन आप दूर से कर रहे हो. सपोज कि एक पर्सन जो है एक्सट्रोवर्ट है, तो आप नोट करते हो कि वो क्या क्या करता है ना. एक पर्सन डिप्रेस है तो आप नोट करते हो कि वो क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, कैसे सर झुका के बैठा है, पोस्चर, जेस्चर, व्हाट इज डूइंग, ये सब काउंट करोगे. वहां पर आप पूछोगे कि क्या हो गया ऐसा जो आप इतना लो फील करते हो, एंड देन ही डिस्क्राइब इमोशनल एक्सपीरियंस दैट लेड टू दैट काइंड ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड. वो अलग चीज है, आप समझ रहे हैं ना. तो ये दोनों अप्रोच जो है बिल्कुल आप कहोगे कि ये सब्जेक्टिविटी पे को रिजेक्ट नहीं करता, इसको इसका बेस बनाकर चलता है. तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, है ना. अगर आप मुझसे ये पूछे कि इस तरीके से कि अगर हम साइंटिफिक वाला जो है ऑब्जेक्टिविटी, अगर फिलोसफिकल बेस क्या है, फिलोसफी, हर चीज का एक फिलोसफी होता है. फिलोसफी मतलब गाइडिंग फिलोसफी. तो अगर हम फिलोसफी ले कि इस आधार पर आप कहाँ देखते हैं, तो इसका जो साइंटिफिक वाले का है ना, साइंटिफिक रिसर्च का जो फ्रेमवर्क है, इसका जो फिलोसफी है वो बेसिकली रैशनलिज्म है. रैशनलिज्म समझते हो? जितने भी इज्म है वो फिलोसफी है कि नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग से आप चीज़ों को समझ सकते हो, जान सकते हो, है ना. जैसे कि हमने एक दो बार तीन बार चीज़ों को फेंका और नीचे आ गया, तो आप कह सकते हो कि सब फिर अगला भी नीचे आएगा. रीजनिंग करते हो आप, तो वो ग्रेविटी की बात करने लगते हो. लेकिन जब आप इस साइड जाओगे और देखोगे कि ये जो है क्वालिटेटिव जो है,
ये रिसर्च फ्रेमवर्क जो है वो किस चीज पे एम्फेसाइज करता है। तो ये रियल में जो हुआ है, लॉजिक की बात नहीं है। आप व्हाट मे इज लॉजिकल मे नॉट बी ट्रू, कभी कभी हमें लगता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो है ना, ये एम्पिरिसिज्म की बात करेगा, इंपेरिकल एक्सपीरियंस की बात करेगा। इट इज मैटर ऑफ डिग्री। देखो इंपेरिसिज्म यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का ही है, तो यहाँ लॉजिक की कोई बात नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं, ये जो बड़ा डिफरेंस फिलॉसफी का है, अगर आप इसको समझ पाओ तो, है ना। अगर आप देखोगे कि साइंस में एक चीज होता है जिसको कहते हैं सैंपल, है ना, कि सैंपल कैसा लेते हैं आप इसमें। तो जो साइंटिफिक मेथड से जो रिसर्च करते हैं उसमें आप सैंपल कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड। सैम्पलिंग मतलब ज्यादा लोग, लार्जर द सैंपल साइज लार्जर द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द थिंग्स। कि यानी 10 लोग वही कर रहे हैं और 100 लोग वही कर रहे हैं और 1000 लोग वही कर रहे हैं, तो जितना आप बढ़ाते जाओगे सैंपल साइज का, देन यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द डेटा। डेटा बेस्ड है ये। तो इसमें जो है, इसमें सैम्पलिंग का लार्जर मीन्स बेटर। जितना लार्ज होगा ये, जैसे ये जितना बड़ा होगा, ये इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये बेटर है, बेस्ट है ये कर। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है? नहीं। तो जिसने पार्टिसिपेट किया है वो ज्यादा अच्छा बताएगा ना। बल्कि हम 100 लोग हों और हमने पार्टिसिपेट नहीं, केवल बुक में पढ़ा है और वो बता रहा है, तो कहते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। जिसने सुनामी का एक्सपीरियंस किया वो ज़्यादा अच्छा बता सकता है। जैसे हमने रेप के बारे में बोला कि जिनको विक्टिम रहे हैं वो चीज़ों के बारे में जो करेंगे, बताएंगे, वो उनका एक एक्सपीरियंस अलग लेवल का होगा, अलग क्वालिटेटिवली उनकी क्वालिटी ही अलग होगी, इसलिए क्वालिटेटिव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फ्यू जो है, फ्यू इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें, या इंडिविजुअल्स कह सकते हो या केसेस कर सकते हो। केसेस भी बोला जाता है इसको, यू आर गेटिंग। तो आप समझ रहे हो, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रेमवर्क क्या होता है, मतलब हम कहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे अगर आप धीरे सैंपल पे फोकस नहीं करते, यहाँ पे केसेस पे फोकस करते हैं कि जो 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 रियल में वो डिजर्व करता है वो केस, उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी करते हैं, भले ही एक केस है या 2 केस है, तो इसकी पूरी गहराई से स्टडी करते हैं, उनसे बात करते हैं, है ना। मेथड तो आपने समझ ही लिया था कि कौन कौन से मेथड होते हैं। अगर आप मेथड्स दे देंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है, कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन यहाँ पे जो मेथड है वो क्या है, आप ये देखो, समझो। यहाँ पे मेथड होगा नैरेटिव एनालिसिस, केस स्टडी, ये सब मेथड है, मतलब अलग हो जाता है। हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रेमवर्क की, और उसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स हमने बना दिए सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना। देन ओनली यू कैन बी, यू विल बी एबल टू मेक योर पॉइंट कि डिफरेंस क्या आता है। अगर आप इसको मैं मूव करके दिखा दूं, देन अगर चौथी बात करें तो इसको तो हम इसमें जो है ना फोकस है, या मेथड में ही यहाँ पे जो फोकस होता है ना, क्वांटिफिकेशन होता है। क्वांटिफिकेशन मीन्स यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन मेजरमेंट। यहाँ पे मेजर करना बहुत ही है। मतलब किसी को फीवर है तो कितना फीवर है, आप तुरंत मेजर करने की कोशिश करोगे। लेकिन आप यहाँ पे जो है इस वाले में आप इस तरह का क्वांटिटेटिव नंबरिंग, जैसे कि 100 इज मोर देन 98, ये हुआ। लेकिन किसी को कहता है कि किसी को फायर का या रॉयट का एक्सपीरियंस हुआ है, तो वहाँ पे मेजरमेंट करने का क्वालिटेटिव तरीका है। वहाँ पे हम उसके नंबर पे फोकस नहीं करते, उसको मेजर उस तरीके से नहीं करते। अब जैसे किसी के एक्सपीरियंस को क्वांटिफाई कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी को देखते हैं, क्वालिटी जजमेंट करते हैं।
है ना, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। तो क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी है। देखिए फोकस देख रहे हैं अप्रोच में। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है क्या डिफरेंस है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल इस तरीके का है कि हम जो है मेजरमेंट वगैरह नहीं कर पाते हो ज़्यादा, है ना। हम अलग अलग केसेस की स्टडी करके उससे एक्सपीरियंसेस को जमा करते हैं और फिर उसका एक फाइलिंग करते हैं कि क्या इससे निकल के आया कर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चूंकि नंबर है तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह का यूज बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या यूज करोगे उस तरीके का, जैसे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वगैरह में पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज होगा, यहाँ पे उस तरह का नहीं यूज होता है, लगभग नहीं। तो यहाँ पे जो चूंकि नंबर में क्वांटिटी में है ही नहीं, तो यहाँ पे चूंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो है लगभग नो कह सकते हो या लिटिल यूज है स्टैटिस्टिक्स का। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैंने बताया कि ये डिफरेंस है। अब वापस आ जाते हैं अपने मूल इसी पार्ट पे। आपको मैं एनसीईआरटी का वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेटिव पैराडिग्म ऑफ रिसर्च। क्योंकि जिस तरीके से हम जो करते हैं ना, इसका मेथड का नाम ही होता है इंटरप्रेटिव। आप जब इसको देखोगे, अगर हम एनोटेशन करें तो यहाँ पर एक टर्म आएगा, देखो यहाँ पे डिफरेंट मेथड नॉन इंटरप्रेटिव। देखो ये देखो, इंटरप्रेटिव हैज इमर्ज्ड। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इंटरप्रेटिव मेथड हैज इमर्ज्ड। एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन। वहाँ पे जो हम एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देन प्रेडिक्शन, अनुमान लगाते हैं, यहाँ पे उस बात पे जोर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पे जोड़ है, मीनिंग पे जोड़ है ना। तो वो आप समझ रहे होंगे कि इसलिए वापस चलते हैं उसी लाइन पे। इसलिए हम लोग जो है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होता है। वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के जगह उसके जो मीनिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसको ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। ठीक है। अब आप थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे कि इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि दोनों का फ्रेमवर्क में अंतर क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। अब जजमेंट मत करना कि कौन ऐसा। ये वैल्यू, अगर कुछ देर के लिए अगर आप कहेंगे ये वैल्यू फ्री कोशिश करता है कि वैल्यू फ्री रहे, मतलब किसी भी कल्चरल या इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आए उन्हें जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, लेकिन इट डजंट क्लेम टू बी वैल्यू फ्री। इट, आप ठीक है ऑब्जेक्टिव तरीके से बताइए, बट इट डजंट क्लेम टू बी वैल्यू फ्री। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से लिखना है आपको, और क्या करना है कि आप पॉइंट्स तो निकालोगे ना डिस्कशन में, लेकिन पूरा ये मंथन जैसे समुद्र मंथन किए जा रहे हो तो 4-5 पॉइंट्स निकलते अलॉन्ग, उसमें आप देखते हो। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में एक नया डेवलपमेंट होता है और नया अप्रोच होता है, तो बहुत बेहतर तरीका ये माना जाता है कि आप कंपेरेटिव तरीके से समझा दीजिए उसको, तभी तो समझ में इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो वो ज़्यादा पिन पॉइंट हो जाएगा और सब्सटेंशियल हो जाएगा बोलने में, है ना। तो 4-5 पॉइंट्स जो आपने देखा वही ऑल्टरनेटिव पैराडिग्म्स का ये है। लेकिन अब जब सवाल है कि रिसर्च हम करते क्या है, रिसर्च इज ए सर्च फॉर ट्रूथ, और साइंस में उसको हम जो ट्रूथ है उसको कहते हैं वैलिड, यानी वैलिडिटी की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो कि ऑब्जर्वेशन का वैलिडेशन कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व। यहाँ पे जो वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे सेम वैलिडेशन की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल, इंटरनल एंड कंस्ट्रक्ट 3 होता है ना, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंस्ट्रक्ट। जैसे एक्सटर्नल वैलिडिटी की मतलब कितना रियलिटी से मैच कर रहा है, एक्सटर्नल ग्राउंड में वो चीज़ें कितना देखती, इंटरनल की कितना आप कंट्रोल करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो काउज इफेक्ट रिलेशनशिप करके इंटरनल है। कंस्ट्रक्ट है कि वो चीज़ जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो थ्योरेटिकली और चीज़ों से मैच करता है कि नहीं, है ना। यहाँ पे जो वैलिडेशन है इस बात का कि जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति को फांसी मिलने जा रहा है और वो अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा है,
तो एक जो व्यक्ति जानता है कि मेरा इस दिन मेरी जीवन खत्म हो जाएगा मेरा, उसका एक्सपीरियंसेस किस तरीके को होते हैं, तो वो कोई जनरलाइजेबल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडेशन जनरलाइजेशन के लिए ही करते हैं आप, है ना, ये जनरलाइज करते हैं कि सबके लिए लागू हो जाए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस एक्सट्रीम और यूनिक चीजों को स्टडी कर रहे हैं कि कैसा होता है, रेप विक्टिम कैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो आप जो है यूनिकनेस पे फोकस करते हैं, है ना। उसी तरीके से आप उसके जो एक्सपीरियंसेस है ना, उसके यूनिकनेस एस्पेक्ट को फोकस करते हैं, सब्जेक्टिव चीजों को फोकस करते हैं कि वो कैसा हुआ। मैंने एक बुक भी लिखा है, वो नॉवेल के फॉर्म में है, साइकोलॉजिकल नॉवेल कह सकते हैं। उसमें बहुत सारे ट्रॉमा जो है ना, रेप है, ये है, उससे सफ़र करने वाले एक इंसान का रियल लाइफ एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड है। तो उसमें मैंने उसके एक्सपीरियंसेस को देखा है, वो क्या बता रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप उस किसी घटना को किस तरीके से देखते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और जिसके साथ वो हुआ है, वो उसको कैसे देखता है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इनसाइडर पर्सपेक्टिव, मतलब कि वो सब्जेक्ट के एंगल से, इसलिए मैंने बोला सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से, हम जो इंसान जो जिसको सफ़र किया है उसके नज़रिए से, उसके नैरेटिव्स को समझते हैं। घटना को आप अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो ये मल्टी पर्सपेक्टिव पे जोड़ देता है। यहाँ पे कई लोगों के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, बस यहाँ पे कोई क्लेम नहीं करता कि ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। कोई घटना को इस तरीके से दिखा रहा है, कोई इस तरीके से दिखा रहा है, कोई अपना अपना अनुभव के आधार पर जो हो। तो ये इसका क्रक्स है इस मेथड का, कि जब चीज़ें अलग हो, बहुत ही जिसको ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी करने का कोई मतलब नहीं हो, तब हम उसको क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का एग्जांपल दिया, रेप विक्टिम का एग्जांपल दिया, पैंडेमिक के एक्सपीरियंस का एग्जांपल दिया। तो वो जैसे आप देखते हो ना कि उड़ीसा में या कहीं और गए, झारखंड में, तो वो दिखा रहा है कि वो केवल भात खा रहा है ना, ट्राइब, और उसी में किस तरह से जीवन वो स्ट्रगल कर रहा है। अब उसको आप जो है उसके एक्सपीरियंसेस को और डे टू डे स्ट्रगल्स को आप समझते हो, तो वो क्वालिटेटिव स्टडी है। उसके नज़रिए से लाइफ को, ये पूरा उसका दिन कैसा गुजरता है, किस स्ट्रगल से गुजरता है। तो ये बड़ा खूबसूरत जो चीज़ है। और इसके बिना अब लास्ट हम करते हैं, ये जो साइंटिफिक मेथड है ना, वो एकदम इम्पर्सनल मेथड है। ये इंडिविजुअलाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड है। ये पर्सपेक्टिव फ्री कोशिश करता है, ऑब्जेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव बेस्ड है, पर्सपेक्टिव फ्री होने की कोशिश नहीं करता। ये क्यों करेगा, फिर तो एक्सपीरियंस ही नहीं पता चलेगा वो। तो अल्टीमेटली घटना और ये घटना का जो मतलब है उस पर फोकस कर। देखो क्या है, अब लास्ट में आप पूछो, दोनों, अगर साइकोलॉजी जिस तरह का फील्ड है, बिहेवियरल साइंस, तो इसमें दोनों चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। तो अगर आप कहोगे दोनों एक दूसरे के से कॉम्पीट कर रहा है क्या, आइदर और, कि मैं सही हूँ मैं सही, नो, इसका अपना एक लिमिट है। और इसके बाद ये, जैसे कि जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कर लिया, लेकिन इनसाइड यू योर एक्सपीरियंसेस विल ऑल्सो, जैसे साइकोलॉजी में आप कहते हैं ना, बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंस, तो आप इस बिहेवियर को जानना चाहते हो, 4 गोल ऑफ साइकोलॉजी होता है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल। किसी को एक्सप्लेन ही करना चाहते हो, तो क्या आप उसके एक्सपीरियंसेस को बिना काउंट किए कैसे एक्सप्लेन कर लोगे आप, तो कंप्लीटनेस नहीं आता। तो इसलिए ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, कंपीटिंग नहीं है ये, है ना। अगर आप ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम पूरे रिसर्च को इस तरीके से अगर हम देख लें, और ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च और ये है क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब ये दोनों मिलके फ्लग को बड़ा कर देता है, इसके स्कोप को बड़ा कर देता है।
अगर आप क्वांटिटेटिव लेंगे तो आप इतना ही रहेंगे, क्वालिटेटिव लेंगे तो आप इतना ही रह जाएंगे। तो दोनों को मिक्स करने से आपकी जो रियलिटी होगी, आपकी जो स्टडी होगी बिहेवियर के बारे में, आपकी जो समझ होगी वो ब्रॉडर होगा और अच्छा होगा। यही है ना, इसी को क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क है। तो जब भी आपको किसी भी लेवल पे आप इस नॉलेज को यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, और आप आई श्योर यू कि you will get very good marks. So it is not essential to memorize the sentences that I have uttered here. Understanding is more important. तो आप इसको यूज़ करें साइकोलॉजी में, देखिएगा बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।